Hello friends, you are welcome in PUP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present fourth video of Videoja Group E on the provisions of Indian Evidence Act 1872. Friends, in this video I will describe the provisions of chapter 9 which stems from section 118 to 134 and which is of about witnesses. जो साक्षियों के विषय में है। मित्रों, मैं अध्याय 9 की चर्चा इस वीडियो में करूंगा। इसके पहले आप तीसरी वीडियो में अध्याय 10 पर साक्षियों की परीक्षा पर चर्चा कर चुके हैं। अब जानिए कि साक्षी कौन होते हैं, कैसे होते हैं, क्या बोलना होता है, उन्हें क्या नहीं बोलना होता है। These all kinds of provisions have been provided in chapter 9 of the Act, section 118 to 134. Basically, all the sections might be categorized into three groups. The last section, I would like to start classification from the last section. Section number 134. Section number 134 is about number of witness. It is of number of witness. Okay? It is generally asked in pre-exams. But number of witness, section 134. In a case, how many witnesses are required? Okay? The answer is very simple, that no particular number of witnesses shall in any case be required for the proof of any fact. कि किसी मामले में कितने साक्षी चाहिए ये बता पाना संभव नहीं है. Because there might be a case there's no need of any witness. A person files a suit against defendant person, defendant admits all the facts, no need of witness. And even in a case there are several witnesses, but no one is trustworthy, कोई विश्वास के लायक नहीं है. तो ये कहना कि किसी केस में कितने गवाह होंगे संभव नहीं. ये 134 प्री के लिए पूछा जाता है, आप इसको जान लीजिएगा. इंटरव्यू और मेंस में कभी शायद मेंस में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, बट इंटरव्यू में जरूरत पड़ सकती है. इट माइट बी आस्क्ड इन इंटरव्यू बट नेवर इन मेंस एग्जामिनेशन. The first section is competency of witness. Competency to be witness. किसी मामले में आपको गवाह क्यों बनाया जाए, कब बनाया जाए, किसे बनाया जाए. What is the eligibilities to be witness in a case? सक्षमता, competency. गवाह होने की योग्यता क्या है? The parameters of competency have been laid down in section 180. इसके जो पैरामीटर्स हैं, जो मापदंड हैं, वो धारा 118 में लिखे हुए हैं. And it has been explained in section 119, 120, 121 and 133. 119, 120, 121, 133 में इसकी व्याख्या की गई. It means I have described section 134, then I have just say something about section 118 and I dictated that section 119, 120, 121 and the second last section 133 are of just explanations of the provisions provided in section 118 की धारा 119, 120, 121 और 133. यह केवल सक्षमता के स्पष्टीकरण है. Actually, these provides explanations to declare a person witness. To make him witness, there might be doubt in society. ये ऐसे लोगों को गवाह बनाने को स्पष्ट कर देती हैं क्योंकि ये लोग ये योग्यता रखते हैं जिनके बारे में समाज में भ्रांति होती है, संदेह होता है, क्या ये भी गवाह बन सकते हैं. Whether even wife or husband of a party might be a witness
Why not? Mostly in criminal cases, if murder has been husband has been murdered before wife, then why should wife be not made a witness? पत्नी को क्यों नहीं गवाह बनाएंगे? To make a person witness and his evidentiary value, the two are not similar thing. किसी व्यक्ति को गवाह बनाया जाना और उसकी गवाही का मूल्य कितना होगा, साक्ष्य का मूल्य कितना होगा, ये दोनों एक चीज नहीं है. The two are very very different things. ये दोनों अलग अलग चीजें हैं. The act provides just that whom may be testified. किन लोगों को हम परीक्षित कर सकते हैं, किन की परीक्षा कर सकते हैं as a witness. Who may be testified as witness. But what would be his evidential value? It has not been provided anywhere in Act. Why? Because it is not subject of legislature to let down such rules on which value of evidence might be decided by court. No. क्योंकि विधायिका उन मूल्यों को लिखा ही नहीं सकती, उन पैमानों को जिन पर किसी साक्षी का साक्षिक मूल्य परखा जाएगा. So it has been left to on discretion of court to decide the evidentiary value of a witness. ठीक है, साक्षी के साक्षिक मूल्य को निर्धारित करना न्यायालय पर छोड़ा गया. इस नाते वो कहीं नियम में लिखा नहीं मिलेगा. ठीक है, अभी हम इस पर चर्चा करेंगे. उसके पहले एक और धारा जो बच रही है. बेसिकली आई है classified the whole chapter just in 3 groups. First, on the name of competency to be witness, section 118. Second one is the last third section. It means section between section 118 and 132. Either read with section 118 or read with section 132. ये जो बीच के धारा 119 से लगा 131 तक, 119 से 131, 190 to 131, ये या तो कॉम्पिटेंसी को एक्सप्लेन करती हैं या कंपल्सन ऑफ विटनेस, कंपल्सन ऑन विटनेस टू आंसर द क्वेश्चन. जनरली witness is compelled in law to answer the question what has been asked to him as a witness. साक्षी के रूप में आए व्यक्ति से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर देने के लिए वो आबद्ध है, अदरवाइज he would be liable for an offense not giving answer to a question as a witness. कि पूछे गए प्रश्न का उत्तर न देना भी एक अपराध है अंडर चैप्टर 10 और 11 ऑफ आईपीसी. तो उसे वहां कंपेल किया जा रहा है. ठीक है, but there are some exceptions too, in which situation a witness may not be compelled. These have been provided in section 121 to 131. ठीक है, so 132 is basic rule and its exception have been laid down early to section 132 in section 121 to 131. धारा 132 एक सामान्य नियम है कि साक्षी उत्तर देने के लिए बाध्य होगा ही होगा. इसके अपवादों की चर्चा 132 से पहले लिख दी गई है 121 से 131 तक. नो अदर सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू बी रीड विद सेक्शन 134 व्हिच इज द थर्ड हेड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ चैप्टर 9. अध्याय 9 का जो तीसरा शीर्षक है वर्गीकरण का, उसमें केवल एक धारा है और इसको किसी और धारा के साथ पढ़ने की जरूरत नहीं. सो फ्रॉम सेक्शन 118 टू 133 I have classified the whole provisions of the sections just into 2 groups: competency to be witness under section 118, compulsion on witness to answer the question asked him to as witness. साक्षी की योग्यता और साक्षी की विवशता, प्रश्न देने की बाध्यता. हमने ये मिलाकर केवल 2 हेडिंग बनाई. सेक्शन 119, 120, 121, 133 जो यहां बीच में, these have to be read with section 118, while other sections are exceptions of rule of compulsion of witness to answer the question. जबकि अन्य धाराएं साक्षी की व्यवस्था के नियम के अपवाद है. Here one thing you have to mind
other. That section 121 is here also and it is here too. 121 is common. It is an explanation of section 118 and it provides an exception of section 132 up to. धारा 121 साक्षी होने की योग्यता को स्पष्ट भी करती है, लेकिन साक्षी बोलने के लिए बाध्य होगा इसका अपवाद भी लिख देती है। तो इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। इसको बस आप नोटिस करिएगा 121 टू 121 यहां भी है, 121 से वहां शुरू है। डोंट थिंक दैट आई हैव रिटन 121 हियर एंड 121 देयर बाय मिस्टेक। मैंने भूल से नहीं लिखा है, ये दोनों ही जगह लिखी जाएगी। ओके, इवन हियर यू हैव टू classify the sections into two groups. First group is section 121 to 129. Actually, this is exception of section 132. Here, section 130 and 131 shall be categorized in second category. Okay? 130 और 131 को एक अलग ग्रुप में बांटा जाना चाहिए। क्यों अलग ग्रुप में? इसलिए अलग ग्रुप में बिकॉज इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ कंपल्सन टू अ पर्सन। एक्सेप्शन ऑफ कंपल्सन टू अ पर्सन, नॉट अ विटनेस, टू अ पर्सन who is compelled by someone or otherwise to produce a witness, produce a document. So actually these two sections are not exception of section 132. Actually, though I have categorized in this group to make the classification easy. यद्यपि मैंने इस वर्गीकरण को आसान करने के लिए धारा 130 और 131 को भी एक साथ वर्गीकृत किया है, लेकिन एक्चुअली 130 से 131 साक्षी की बोलने की, उत्तर देने की व्यवस्था का अपवाद नहीं, बल्कि आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर समन किया गया कि वो कोई डॉक्यूमेंट कोर्ट में पेश करे, कोई मटेरियल पेश करे, तो कंपेल्ड होता है कि वो पेश करे, अदरवाइज ही वुड बी लायबल फॉर एन ऑफेंस टू डिसओबेइंग द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। न्यायालय के आदेश की अवमानना का दोषी हो जाएगा। बट सेक्शन 130 एंड 131 इज एन एक्सेप्शन। 130 और 131 एक अपवाद है। तो ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है। रिलेटेड टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ये वास्तव में डॉक्यूमेंट वगैरह के पेश करने से संबंधित है। ठीक है, दीज आर एक्चुअली ठीक है। अब इसको हम बाद में बताएंगे, इसमें फिर है क्या, अगर ये डॉक्यूमेंट से रिलेटेड है तो इसमें क्या है। नाउ कम ऑन सेक्शन 118। ओके, अब फिर आप 118 पे आए। एक्चुअली 118 में क्या लिखा हुआ है, दिस इज अपीयर टू बी कॉम्प्लेक्स वन, बट एक्चुअली इट इज अ वेरी इजी सेक्शन, वेरी इजी प्रोविजन। धारा 118 देखने में लगती है कि जटिल है, कठिन है, लेकिन है बहुत आसान। एंड हाउ विल यू मेक इट इजी? सो लिसन मी केयरफुली, आई एम रीडिंग द बैलेट, और मैं जहां पे बोलना छोड़ूंगा फिर आगे जहां बोलूंगा वहां से मार्क करिएगा। All persons shall be competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them, ये पहली बात हो गई, और from giving rational answer to those questions। बस, एक्चुअली द सेक्शन इज जस्ट इट। ये जितना मैंने बोला एक्चुअली धारा 118 यहीं तक है, सच कहा जाए तो। उसके आगे क्या लिखा है,
By what reason? By any reason. So by whatever reason, if a person is prevented from understanding the question put to them or put to him, or from giving rational answer to those questions asked to him, by whatever reason if it is prevented, then there's no need to discuss on the reasons. जब चाहे किसी भी कारण से वह पूछे गए प्रश्न को समझने और उसका तर्क सम्मत उत्तर देने में अक्षम है, तो वह साक्षी नहीं होगा किसी भी कारण से। तो कुछ कारणों को लिख देने की क्या जरूरत है? तो एक्चुअली ये धारा यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। लेकिन अगर कुछ कारणों को लिखा गया है तो आप देख लीजिएगा। फिर भी मैं बता दूं कि ये धारा यहीं तक कंप्लीट है। सो देयर, ठीक है, अनलेस, एक तो अनलेस को अंडरलाइन कर देंगे आप विशेषतया। द कोर्ट कंसिडर्स दैट के बाद पहला क्या? दे आर प्रिवेंटेड, दे मींस विटनेसेस, दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस पुट टू देम और फ्रॉम गिविंग रेशनल आंसर टू दोज क्वेश्चंस। ओके, तो सक्षम साक्षी कौन है? इसको ये नेगेटिव लैंग्वेज में लिखिए, वेरेंट अनलेस करके लिखिए। इसको पॉजिटिव कर दे तो so then what is competency to be witness? Competency to understand the question being asked to the witness and to give rational answer to the question. दो योग्यता हो गई ना, पूछे गए प्रश्नों को समझना, अंडरस्टैंडिंग, पूछे गए प्रश्न को समझना एंड गिविंग रेशनल आंसर। There are just two. If the person is able to understand the question asked to him and also to give rational answer to the question asked to him, then it means he is a competent witness for the fact. But I criticize the language, even the language of section 180. It is too much lengthy here. अगर मैं इतनी ही डिफिनेशन मान लूं तो भी लेंदी है। I want to ask a question to you. मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूंगा। But how can a person give rational answer to a question without having competency to understand the question? कोई व्यक्ति जो प्रश्न को ही नहीं समझ सकता, क्या वह उसका तार्किक उत्तर दे सकता है? There is loophole in language of direct. यहां परिभाषा में थोड़ी कमी है। यहां क्या लिखा हुआ है? फिर से देखिए, unless the court considers, क्या? There are two options, that they are prevented from understanding the question put to them or prevented from giving rational answer to those questions. मैं पूछता हूं और रखा हुआ, अगर दोनों में से किसी भी एक का प्रिवेंटेड है तो अयोग्य हो जाएगा। तो मैं पूछ रहा हूं कि हाउ कैन अ पर्सन गिव रेशनल आंसर टू अ क्वेश्चन which he do not understand? If a witness is unable to understand a question, how can he give rational answer to the question? It means there is just single competency, just single qualification is required to make him competent to be witness, and that is not understanding the question. That is just to give rational answer to the question. According to me, you may criticize me because I always criticize the verdict of Supreme Court, because I do believe that is my duty
to take the provisions of law on the basis of concept and object of the provision. मैं हमेशा ये मानता हूं कि विधि के किसी प्रावधान को उसकी संकल्पना और मकसद के साथ लिया जाना चाहिए। अगर मैं उस पर कसता हूं तो मुझे इससे व्हाट द सोर्स में भी, व्हाट एवर सोर्स, there are so many provisions have been inserted in our constitution by great scholars, by the great Indians, member of Constituent Assembly of India. But just when they passed our constitution and adopted it, they felt that right to property as a fundamental right is not rational, is not genuine. So they inserted 9th schedule in our constitution. So I never believe that this is genuine because it has been issued by so personality. It is said by the legislature. No. मैं कभी इस बात पे विश्वास नहीं करता कि यह कानून इसलिए सही होगा क्योंकि इसको विधायिका ने कह दिया, यह निर्णय इसलिए सही होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया. इट्स नॉट माय ड्यूटी. As a citizen of India, I have to follow the law what have been provided in the acts or what have been ordered by in a verdict of Supreme Court or High Court. But as a student of law, it's my duty to criticize the provisions or verdict of law. ठीक है? विधि का विद्यार्थी होने के नाते मेरी आलोचना करने का हक, आलोचना, निंदा नहीं है ये. खैर, फिर यहां लौटते हैं. तो मैं क्या चाहूंगा? Who may be justified? The person who can give rational answer to the question. बल्कि मेरी समझ से परिभाषा में ये लिखकर और इसे ही एक्सप्लेन किया जाना चाहिए था. जबकि इसमें क्या लिखा गया? If court considers, unless the court considers that he is prevented to understand the question put to him or to give rational answer to the question. और फिर क्या आगे दिया गया? फिर आगे इलस्ट्रेशंस दिए गए रीजन के. क्या क्या? By what reason he is prevented to understand the question or give rational answer? किस कारण से वह प्रश्न को समझने में समर्थ है या उसका तार्किक उत्तर देने में समर्थ है? हाँ, जान लीजिए ये वीडियो प्री मेंस इंटरव्यू सबके लिए है. ओके, तो फिर क्या लिख दिया गया? By tender years, no certain year, no certain age. Tender year, क्यों? क्योंकि कोई 12 साल का बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटी को समझ सकता है बट साथ सिविल एक्टिविटी को नहीं समझेगा. तो जिसे समझ सकता है उसके लिए उसको मान लिया जाएगा विटनेस है. 4 साल का बच्चा विटनेस बनाया जाता है. अक्सर जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जिसमें स्पाउस के बिटवीन मर्डर या वायलेंस वगैरह होता है, उसमें बच्चे ही गवाह बनते हैं और बच्चे उस तरह की वायलेंस को समझ पाते हैं. जब कहीं चेक पर फर्जी साइन है बच्चा नहीं समझ पाएगा. तो देयर इज नो सर्टेनिटी ऑफ एज. ठीक है, नीदर लोअर नॉर अपर. बाय टेंडर इयर्स, कोमल वयस, कम उम्र का होने के नाते नहीं समझ पा रहा है. एक्सट्रीम ओल्ड एज में जाकर के आदमी अपनी सोच समझ खो देता है. आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जो कभी तेज तर्रार वक्ता थे, बहुत तेज चिंतक थे, आज पहचान भी नहीं पा रहे हैं लोगों को, लोगों से मिलने जा रहे हैं. तो एक प्रकृति है, बुढ़ापे में जाकर हम बहुत कुछ समझ खो देते हैं जबकि वो पागल भी नहीं हुए. टाइम लेता है माइंड, तो चीजों को समझ नहीं पाएगा उसके सामने क्या होगा. खैर, डिजीज, बीमारी में आदमी की मानसिकता खराब हो जाती है. whether our body or mind or any other cause of the same kind. अब मैं ये तो कह रहा हूं or any other kind cause of the same kind, it means by whatever reason, if court considers that the person is unable to understand the question put to him or give rational answer to the question, he may not be justified. यदि न्यायालय की निगाह में, न्यायालय की समझ से वो व्यक्ति प्रश्नों को समझ नहीं सकता या उनका तार्किक उत्तर नहीं दे सकता, चाहे कम आयु के कारण, चाहे अधिक वृद्धावस्था के कारण, चाहे शरीर या मन की बीमारी के कारण या किसी अन्य कारण से, बाय व्हाटएवर रीजन. लेकिन मैं क्या चाहता हूं, परिभाषा क्या लिखी जाए? A person is competent witness when he is able to give rational answer to the question. Just a single qualification. Because there is a condition to fulfill the qualification to give rational answer. Please tell me, how can a person give rational answer to a question without understanding the question? Is it possible? No. Then what is need to write
क्वालिफिकेशन। जब बिना प्रश्न को समझे प्रश्न का तार्किक उत्तर नहीं दिया जा सकता, तो फिर प्रश्न को समझना अलग से योग्यता कहां होगी भाई? मैं चाहता हूं कि इसको यहां से हटा दी जाए, यस, यू मस्ट बी इन्फॉर्म माई ड्रीम्स, माई ऑब्जेक्ट। आपको मेरे लक्ष्य से परिचित होना जरूरी है। इट इज माई गोल टू एस्टैब्लिश अ ड्राफ्टिंग स्कूल इन इंडिया। मेरा लक्ष्य है भारत में एक प्रारूपण संस्थान खोला जाए जो ड्राफ्ट करे बिल को। पार्लियामेंट बता दे कि उनको किस तरह का चाहिए। अभी क्या हो रहा है, ये बड़े बड़े चैंबर्स को दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट के वकीलों के, लेकिन नहीं, हम चाहते हैं कि उसमें रिसर्च स्कॉलर को रखा जाए, उसमें हर क्षेत्र के विद्वानों को रखा जाए, और उसके बाद अल्टीमेटली जो लॉ फील्ड के एक्सपर्ट्स होंगे, and it would be not decided on the basis of degree what they have, actual experienced लोग जो होंगे वो लोग उसका फिर ड्राफ्ट तैयार करें। इतना लॉजिकल लॉ बनाया जाए कि तो मैं तो अंग्रेजों के समय के लिखे कानून में कमी निकाल रहा हूं, आज का कानून लाइए मैं सब में कमी निकालूंगा। इतनी पुअर ड्राफ्टिंग हो रही। एंड डोंट फॉरगेट दैट आवर जुडिशियल सिस्टम इज रन अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस व्हिच हैव बीन लेड डाउन इन द एक्ट। तो ये मत कहिएगा कि सर इतनी खामी है तो क्या फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ जाता है। खैर, इसे पे लौटते हैं। एंड टू गिव रेशनल आंसर व्हाट इज रिक्वायर्ड, तार्किक उत्तर देने के लिए क्या क्या चाहिए इसको एक्सप्लेन कर दिया होता। फर्स्ट, साउंडनेस ऑफ माइंड, मस्तिष्क सक्षम हो, पागल नहीं, दारू में डूब न गया हो उस समय। And the second thing is he must be acquainted with the fact। आप बताइए मैं बहुत ब्रिलियंट आदमी हो सकता हूं, लेकिन अभी पूछा जाए कि दिल्ली में इंडिया गेट पर आज इस टाइम पे क्या हुआ, हाउ कैन आई आंसर दो आई हैव साउंड माइंड? मैं कहूंगा आई डोंट नो, दैट इज नॉट रेशनल आंसर। How am I unable to give rational answer? Because I have not acquainted with the fact। तो तथ्य से परिचित होना, यानी दो बात है। गवाह कोई तभी होगा जबकि वह स्वस्थ चित्त होगा, यानी कि पावर ऑफ एक्सप्रेशन उसके अंदर होगी, वो बोलने की क्षमता रखता है। बोलने का मतलब अपनी बात को, फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकता है, यानी साउंड माइंड। और दूसरा, he has obtained an opportunity to pursue, to grasp the fact by his own senses। धारा 60 में जो डायरेक्टनेस का नियम लिखा हुआ है, रूल ऑफ डायरेक्टनेस ऑफ ओरल एविडेंस, यहां विटनेस की बात हो रही है, अल्टीमेटली इट इज ऑफ ओरल एविडेंस, मौखिक साक्ष्य के बारे में चर्चा है। तो मेरी समझ से रेशनल आंसर देने के लिए क्या होना चाहिए, द पर्सन मस्ट बी ऑफ साउंड माइंड, not only when he is called as a witness in witness box, but even when he has received the facts। दारू पी के मस्त था, एकदम से सो गया था, सो नींद थी, तो जब उस फैक्ट को जान ही नहीं पाया तो कैसे आंसर करेगा? So there must be two qualifications, but not in that form to understand the question to give rational answer। No, मेरी समझ सिर्फ इसी की केवल जरूरत है, to give rational answer, and to give rational answer the person, to give rational answer the person must have to be informed about the happenings of the subject matter of case। जो केस का सब्जेक्ट मैटर है उससे वो परिचित होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है? And by whatever reason, if he is unable to understand, sorry, to give rational answer of the question, not only on the basis of age, on the basis of absence from the happening, place of happening, मैं वहां पे था ही नहीं जहां कोई अपराध हुआ, तो मैं कैसे साक्षी बन जाऊंगा भाई? तो आपको यहां क्वालिफिकेशन लिखना चाहिए, टू गिव रेशनल आंसर। ओके? और जो अगले सेक्शन है वो क्या है?